Now class 10th we are again focusing on the organic chemistry part, and in this we have already discussed about many things about nomenclature. Now we are focusing on the individual compounds of we'll see how we can write down their names in IUPAC names as well as the common names. So the first member which I am starting is that is your alkane. So I am writing down. This is the first member which we have to discuss in the organic compounds, that is alkane. You have to remember that each and every organic compounds have their general formula. So this is also having a general formula, and that general formula is CnH2n plus 2, because we are in the initial condition, so we have to learn many things. So alkane, you have to remember the general formula. N is an integer and it starts with 1. So first of all you have to make sure that in your organic chemistry in class 10th we have to remember all the organics compound up to कार्बन नंबर 5. ठीक है, 5 कार्बन नंबर्स तक हमें याद रखना है. ऑल द नेम्स एंड वट एवर यू आर डूइंग, यू आर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स और देयर जनरल फॉर्मूलाज और देयर IUPAC name, whatever is been there. So the first thing which we are focusing on the alkane, that general formula I am writing CnH2n plus 2. So it starts with n is equals to 1. So I put the value of n over here. So you know, you are math students, you know how to put it, the values. So I am writing down this way. 2 ones are 2 plus 2. So first member is CH4. ठीक है, and you remember this CH4 you have discussed it, it is methane. But now we have to see, this is the way how I am using my formula. First thing. Second thing which you have to remember about alkanes is IUPAC name. IUPAC name we have already discussed about it. Fine. So in case of alkanes, the name is same, alkane only, this way only. So what I am just, I always put a you can say a dash sign over here, so that we can just separate these two words. So when you are just alk plus ane, when these two words are add together, then you get an alkane. So the first member, you know, I have already taught you about C1, C2, C3, C4, C5. We have 5 members na in our course, so we are focusing on it. This must, you must be remembering: meth, eth, prop, ब्योट, पेंट. ठीक है, तो ये आपको पता होगा, याद हो, ये तो याद करना पड़ेगा, बिना इन्हें लर्न करे आप नहीं कर सकते. तो यहाँ पे देखिए C1 है, फर्स्ट मेंबर है ना, C1 इज कमिंग. सो CH4, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या लिखा, मेथ. ये उठाया, पीछे क्या लगा दिया हमने, ANE, तो मेथेन. ठीक है, मीथेन. अब पॉइंट ये होता है कि इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों सेम होते हैं, कोई स्पेशल नेम नहीं होता है इसका. तो जो IUPAC नेम है वही इसका कॉमन नेम भी होता है, मतलब इसका IUPAC नेम भी मीथेन है और कॉमन नेम भी क्या है, मीथेन है. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेंबर, मीथेन. अब हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंगल कार्बन एटम है. आपने यहाँ 4, यू नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, 4 वैलेंसी होती है, और 4 वैलेंसी में क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो यू पुट इट H H H H. So what 2 things we have discussed over here, how to write down their common name and how to write down their IUPAC name, along with that how to draw its structure formula. ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हमने इसमें लिख दिया है. ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में देखें तो अगर हम, मैंने तुम्हें इसकी एक वीडियो शेयर करी थी, तो मैंने उस वीडियो में जो शेयर करा था, जो नेम के केस में अगर हमने इसका मीथेन नाम लिखा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए मेथ जो होता है वो वर्ड रूट होता है, ANE जो होता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है. अब वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा और अच्छी तरह से पढ़ना है तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो मेथ है ये बेसिकली क्या था, दैट वॉज वर्ड, सॉरी वर्ड, वुड लिख दिया मैंने, वर्ड रूट, and this was your primary suffix. ठीक है, क्लियर हो गई. अब हम ऐसी कोई दूसरा मेंबर ले लेते हैं, थोड़ा आगे लेके चलते हैं. जब हम n की वैल्यू सपोज करो 3 डिप्यूट करते हैं, तो हमने वही फॉर्मूला वही है हमारा, CnH2n plus 2, तो C3H2 इंटू 3 plus 2. तो आपने कैलकुलेट करा C3H678. ठीक है, सही लिखा है, 2 3 6 7 8 जोड़ के. नाउ यू हैव टू रिमेंबर्स नेम. अब 3 के केस में हमारा क्या आ रहा है, प्रॉप, और पीछे क्या लगाना है, एन लगाना है. तो आप इसमें नाम क्या लिखेंगे, प्रॉप और एन.
propane. IUPAC name is same and your common name is also the same. Now you have to draw the structure. So your duty first of all is how many carbon atoms are there? 3. This also I have taught you that you elaborate it 3 times, है ना. 3 हैं तो 3 है. अब आप इसमें बैलेंसिंग वो कोवेलेंट बॉन्ड्स लगाइए ताकि आप उसकी टेट्रा वैलेंसी बैलेंस कर सकें. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मेंबर है वो हाइड्रोजन है. ठीक है, तो जो एटम है सारे हाइड्रोजन की उनको लगाइए, लेकिन काउंट कर लीजिएगा कि 8 है कि नहीं है. ठीक है, तो कितने हो गए? 3 कार्बन एटम्स शो है हम लोग. हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई इसमें मार्क्स नहीं काट सकता है. तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू. सपोज n इज इक्वल्स टू 5 आप लेते हैं, सेम फॉर्मूले में लगाइए. C5H 2 इंटू 5 प्लस 2 हाउ मच? C5H 10 12. ना 5 के केस में हमने क्या देखा था? पेंट. तो हमने क्या देखा यहाँ? पेंट लिख के और AN ही आपने लिख दिया, पेंटेन. अब आप इलेबरेटेड फॉर्म इसे करेंगे. कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5. ठीक है, और आपने इसमें बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स लगा. सबको हाइड्रोजन से पोजीशन लगा दीजिए इनकी. ठीक है, और काउंट ज़रूर कर लीजिएगा 10 हो रहे कि नहीं. ऊपर 5 है, नीचे 5 है, 12 हो रहे हैं. ये 10 11 12. तो ये पेंटेन. IUPAC नेम भी नहीं है, कॉमन नेम भी है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू हाउ टू राइट डाउन द नॉमेनक्लेचर फॉर एल्केन्स. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट मेंबर. Now we are focusing on alkenes. Alkenes are basically unsaturated. We have already discussed, but still I am telling you, unsaturated hydrocarbon है. Alkenes जो भी हमने पढ़े हैं वो हमारे saturated hydrocarbons. अब saturated unsaturated में अंतर पता है. unsaturated मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. तो alkenes वो members होते हैं organic compounds में जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है. तो they are unsaturated hydrocarbons and they contains double bond, right? Right, general formula if you talk about CnH2n. So double bond, you know, this is the way how we represent the double bond. General formula is CnH2n. N is an integer, and it's remember that for the double bonding you have to start n is equals to 2. You cannot start from n is equals to 1. So over here n is equals to 2 you have to focus and put the value of it. Let's see what will be the case. And it's always, that's why I'm writing the points, that it's always starts from n is equals to 2. Then when you talk about the IUPAC name of it, then it's just like that only, the same thing. एल्क लिखोगे और पीछे क्या लगता है? इन होता है. ठीक है, एल्क प्लस इन. ना इट हैज़ द पोजीशन ऑल्सो. अब हम इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजीशन, अभी तो एक जनरल हम वे में लिख रहे हैं एल्क प्लस इन, बट ओवर या इन एल्किन्स आप नहीं जानते ना डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, तो पोजीशन भी होती है. तो उसको भी हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट. We were talking about n is equals to 2. Substitute the value for n. So that is 2H2 into 2. What you got it? C2H4. ठीक है, अब इसको, ये इसका नाम, अब हमने पीछे अभी देखा था C2 के लिए हम क्या यूज़ करते थे? एथ. तो हमने क्या लगाया? एथ, और पीछे क्या लगा देना हमें? ईन, ईथीन. अभी हम जनरल देख रहे हैं, हम इसको और डेप्थ में देखेंगे. अब हमारा स्ट्रक्चर की ड्यूटी है. तो 2 कार्बन एटम्स हैं, पहले सिंगल बॉन्ड लगाओ. लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है. तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया. अब आप कार्बन की बैलेंसिंग करें. ऑलरेडी हर कार्बन एटम्स के पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो आपको एक और 2 और लगा देने. 1 2 3 4. 1 2 इसका भी हो गया क्योंकि शेयरिंग चलती है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब बाकी आप इसको किससे सेटिस्फाइड करेंगे? हाइड्रोजन एटम से. ठीक है, तो ये क्या है? आपके हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे. और ये आपकी, अब देखो यहाँ पे मैंने तुमसे बात कही पोजीशन की. अभी तो हमने एक जनरल लिख दिया इथीन, ख़त्म कहानी कर दी. लेकिन मैंने तुमसे यहाँ बोला था पोजीशन. यहाँ पे पोजीशन भी मैटर करती है. अब देखो यहाँ पे काउंटिंग करना. अब शुरू करो पोजीशन की. 1 2. ऐसे करोगे तो भी 1 2 आ रहा है. अगर नीचे से कोई बच्चा करना चाहे तो भी 1 2 आ रहा है. तो हर एंगल में जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से, इस केस में भी 1 से 2 की तरफ जा रहा है, और इस केस में भी क्या हो रहा है? 1 से 2 की तरफ जा रहा है. तो व्हाट इज हैपनिंग दैट योर एवरी टाइम योर डबल बॉन्ड पोजीशन इज 1, यू ऑलवेज टुक द लोएस्ट पोजीशन. आप कहोगे मैम आपने 2 क्यों नहीं लिया? 2 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 2 1 से बड़ा होता है, और हम हमेशा चूज़ करते हैं लोएस्ट पोजीशन. तो 1 छोटा है, तो इस अगर कोई बच्चा इधर से भी नंबरिंग करे तो भी पोजीशन 1 रहेगी, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो भी पोजीशन क्या रहेगी? आपकी 1 रहेगी. अब इसे लिखना कैसे है? ठीक है, तो लिखने के तरीका है, आप लिखोगे एथ, ठीक है, डैश
अब 1 पोजीशन है डैश इन, ठीक है। इस तरह से आप, ये तरीका है, क्योंकि पोजीशन आपने क्या डिसाइड करी इसमें, 1, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है आपकी, 1 पोजीशन पर है। किसी भी एंगल से लीजिए, इधर से लीजिए या इधर से लिखिए। तो ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग पता है कैसे लिखते हैं, 1 लिख के इथीन होता है, ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन ये सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है। बुक्स में कभी कभार बुक्स में ऐसे करके लिखा रहता है, लेकिन आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू राइट डाउन दिस वे, बिकॉज दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग देयर IUPAC नेम अलॉन्ग विद द पोजीशन। खाली लिखोगे तो इथीन लिख दोगे, लेकिन पोजीशन के साथ लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है कि मैम खाली लिखे या पोजीशन के साथ, देखो बॉन्ड्स हैं तो पोजीशन ज़रूर दिखाओ। आप ये भी लिख के और करके ये भी लिख देना अगर कंफ्यूज हो रहा है, ये भी और ये भी, ठीक है। इट्स ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एग्जाम्पल। सपोज करो n इज इक्वल्स टू, हम 3 लेते हैं, तो फॉर्मूला तो वही है, आपने डिप्यूट करा तो C3H3 2 6, ठीक है। अब 3 के केस में होता है प्रॉप, तो बच्चा प्रॉप लिख के क्या लिख देगा, इन लिख देगा। अब हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। अब गलती से ये मत कर देना कि डबल बॉन्ड है सब में डबल बॉन्ड लगा के बैठ गए, है ना। अभी हम तुम्हें ये भी बताएंगे, अगर तुम ये लिखा है गलत है, क्यों गलत है, अब तुम बैलेंसिंग करोगे। यहाँ भैया 1 2 3 4, इस कार्बन की तो 1 2 3 4 ऑलरेडी है, इस कार्बन की 1 2 3 4। अब बताओ हाइड्रोजन तुम्हारे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। इसका मतलब ये एब्सोल्युटली गलत है, ये काम नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले आप सिंगल बॉन्ड लगाइए और अपनी चॉइस से कहीं पे भी डबल बॉन्ड एक जगह लगाइए। हमने यहाँ लगा दिया। पहले हम देखते हैं, हमने अपनी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम यहाँ हाइड्रोजन प्लेस करें और फिर देखेंगे, काउंट करेंगे कि हमारे कार्बन हाइड्रोजन सब बैलेंस्ड हैं कि नहीं है। कार्बन इज 3 राइट, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा करेक्ट है। अब एक बच्चा ऐसे लिख रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा फ़र्क कर दो, उसने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। किसका सही है और किसका गलत है, ठीक है। अभी ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई बच्चा यहाँ से, अब एक चीज़, यहाँ पे तुम्हारे डबल बॉन्ड्स एक तरफ यहाँ है, तो बच्चा अगर यहाँ से लिखेगा नंबरिंग तो ही ठीक है, अगर यहाँ से लिखेगा नंबरिंग तो डायग्राम बनाने के बाद भी नाम गलत लिखेगा, गलत हो जाएगा, ये राइट है। अब क्यों सही है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ से जा रहा है, 1 से 2 की तरफ, और यहाँ कहाँ जा रहा है, 2 से 3 की तरफ। तो पोजीशन इसमें कहाँ, कौन सी पोजीशन आ रही है, इधर पोजीशन आ रही है आपकी 2, ठीक है। सॉरी, हम लिखते हैं 2, क्योंकि 2 से 3 की तरफ जा रही, और यहाँ पोजीशन क्या जा रही है आपकी 1, तो लोएस्ट है ना, 1 छोटा होता है ना 2 से, तो इसको चूज़ करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, फिर वो बच्चा यहाँ पर ऐसे लिखेगा, एक बच्चा 1 2 3 यहाँ से लिखेगा, तो यहाँ पे ही वही कंडीशन है, पोजीशन 1। तो दोनों ही डायग्राम सही है, लेकिन पोजीशन में आपको कौन सी पोजीशन सही रखनी है, जो आपकी 1 से शुरू हो रही है, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या, हम तो प्रोपीन पहले ही लिख के आए हुए हैं, है ना, तो हमें पोजीशन बस फिट करना है। इसको हमने प्रॉप डैश लगाया, कहाँ लगाया था, 1 डैश लगाया इन, ये हमारा करेक्ट है। अगर हम ये लिख दें गलती से तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग है, ये हमारा राइट है, क्योंकि हमने देख लिया है कि हमें पोजीशन भी लोएस्ट चूज़ करनी होती है। इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल, देन यू विल बी मच मोर क्लियर। चलो n इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं, है ना, बीच बीच में से करा रहे हैं, थोड़ा तो प्रैक्टिस आप खुद भी करेंगे। तो C5H2 5 10, ठीक है। अब देखो, पहले 5 कार्बन लिख लो, एक ही बार डबल बॉन्ड लगेगा, गलती से सब में मत लगा देना, जहाँ पे भी मन करे वहाँ लगा दो। 1 2 3 4, ये रहा, कि ह्यूमन टेंडेंसी सबसे गलतियाँ हो जाती हैं ना, वो हम लोग ठीक भी बाद में कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी देखते हैं कि जो हम लोगों ने बनाया वो सही है भी कि नहीं है, पता चला गलत लिख के बैठे हुए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही है, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब देखो, एक बच्चे ने ऐसे बनाया, ठीक है, एक बच्चे ने क्या करा, अब हम हर तरीका बताएंगे आपको, सॉरी यहाँ नहीं, ठीक है, किसी बच्चे ने ऐसे बनाया,
देखना तो हमारी सारी ड्यूटी है कि अगर हम नहीं देखेंगे तो हम लोग खुद ही परेशान होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम सब देखें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो बच्चा ये बना रहा है ये भी ठीक है, जो बच्चा ये बना रहा है ये भी ठीक है, जो बच्चा ये बना रहा है वैसे तो ये ठीक है, लेकिन लोएस्ट पोजीशन की बात होती है तो हमारे लिए यही बेटर है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बना सकता है बच्चा, वो यहाँ लिख सकता है डबल बॉन्ड, लेकिन वो पोजीशन में वो सेम बैठ जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ से चेक करते हैं। अब बच्चा अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहा है तो यहीं से नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, वो यहाँ से डबल बॉन्ड बना, अब तक तो समझ में आ गया होगा कि यहीं से हम शुरू करेंगे, गलत जगह नहीं लेंगे। ठीक है, अब बच्चा यहाँ से लिख रहा है तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक, अगर बच्चा ऊपर से लिख दे 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 से 3 की तरफ जा रहा है और यहाँ से 3 से 4 की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर वाला तो रॉन्ग है एब्सोल्युटली, नीचे वाला सही है। अब इसकी नाम लिखेंगे तो हर एंगल से 5 है, पेंट डैश 1 डैश इन। भले ही स्ट्रक्चर फ़र्क है, इसका नाम भी यही निकलेगा, पेन डैश 1 डैश इन। इस कंडीशन में आओ, 5 तो है ही, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो पेंट है, डैश यहाँ पोजीशन क्या है 2 से 3 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ देखो चेंज हो गया 2 डैश इन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या है आपका 2 डैश, क्योंकि अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना दूंगी ना बेटा, अगर इसके बदले सिंगल बना ये डबल, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2, तो फिर तब भी यही नाम बैठेगा, तो कोई इशू नहीं है बच्चा कैसे बना रहा है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने का जाएगा तो आप यही वाले बनाएंगे, या तो ये बनाएंगे ये बनाए, इसको नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर वही वाली बात है ना बेटा कि फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पे क्या है सेकंड पोजीशन पे है, तो इट्स बेटर यू यूज़ दिस वन, डोंट यूज़ दिस वन। लेकिन अगर बोर्ड वाले आपको बनाने को देते हैं, अगर उन्हें, क्योंकि यहाँ दोनों क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला गिवन होता है, IUPAC नेम लिखिए, IUPAC नेम दिया रहता है, फॉर्मूला ड्रॉ करिए, दो ही क्वेश्चन है, या तो IUPAC नेम आपको राइट करना है या यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बेटा एक चीज़ और, इसमें एल्केन्स के केस में इनका कॉमन नेम होता है, वो शायद मैंने स्किप कर दिया, लेकिन मैं यहाँ बता दे रही हूँ। तो जितने भी हैं, अभी हमने क्या बनाया अपना ईथीन, ठीक है, प्रोपीन, ठीक है, तो अगर जैसे इनको कॉमन नेम लगाना है तो ये देखिए एल्काइन से लिखिए और LENE, मतलब ईथीन में क्या हो जाएगा इथाइलिन। आप एल्काइल के लिए यही लिखोगे, और सेकंड इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, C2 और आपका C2H4 था, है ना। तो इस कंडीशन में आपको ईथीन आपने लिखा था, तो आप इसका कॉमन नेम अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या एल्काइल है ना, ऐसे यहाँ से बदले एल लगा लो, एल्काइल। एल्काइल के लिए इथाइल लिखते थे हम लोग, है ना, तो हमने इसमें क्या लिखा है इथाइल प्लस इन, ये थोड़ा हमने यहाँ गलत बना दिया, ये इधर है, इधर से ये होगा। ठीक है, अब ये हमें प्रोपीन है, प्रोपीन के केस में हम क्या लिखेंगे प्रोपाइल, और पीछे क्या जुड़ जाएगा इन, प्रोपलीन, जोड़ दो एक साथ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है एक चीज़ क्लियर है। अगर ब्यूटीन टीचर देती है तो आप इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, ठीक, तो आई थिंक नो इश्यूज ऑन इट, तो कॉमन नेम भी आप लिख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ पढ़ी है, एल्केन्स और एल्कीन्स के बारे में। अप टू 5 कार्बन एटम्स हैं, प्रैक्टिस कर लो एल्केन्स के भी सारे और एल्कीन्स के भी, IUPAC नेम अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर, अलॉन्ग इफ इट हैज़ अ कॉमन नेम, डू दैट ऑल्सो। आई थिंक होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड these two topics. We'll discuss the other two topics, there are many others also, we'll discuss in other videos.